قطر نے قدرتی گیس کی برطرف برآمدات معطل کر دی۔ عالمی گیس مارکیٹ میں کئی ہفتوں تک قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ سوئس صدرن کا رمضان شیڈول تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ گزشتہ سال کی طرح گیس صبح اور شام کے اوقات میں 3 سے 9 بجے تک فراہم کرنے پر غور۔ اوگرا کا کہنا ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ عوام افواہوں پر توجہ نہ دیں۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایران نے اسرائیل پر ایک اور میزائل حملہ کر دیا۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں خطرے کے سائرنز بج اٹھے۔ آپریشن غضب للحق میں صرف دہشت گرد ٹھکانوں اور سہولت کاری کے مراکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے پھر واضح کر دیا، افغان طالبان رجیم کو پاکستان یا دہشت گردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ مشرق وسطی میں جنگ کا دائرہ وسط ایشیا تک پہنچنے کا خدشہ۔ آذربائیجان کے سرحدی شہر نیچخوان کے ایئرپورٹ پر میزائل اور ڈرونز کے حملے میں 2 افراد زخمی۔ باکو کا ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج۔ اور T20 ورلڈ کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں بھارت کی جارحانہ بیٹنگ، 18ویں اوور میں 212 رنز بنا لیے۔ ایران نے اسرائیل پر ایک اور میزائل حملہ کر دیا۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں خطرے کے سائرنز بج اٹھے۔ بھارت کے سابق سیکرٹری خارجہ کمل سبل نے ایرانی جہاز پر امریکی حملہ طے شدہ منصوبہ قرار دے دیا۔ امریکہ کو معلوم تھا کہ ایرانی جہاز مشقوں کے بعد واپس جا رہا ہے۔ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق مشقوں میں شریک جہاز غیر مسلح ہوتا ہے۔ آپریشن غضب للحق میں صرف دہشت گرد ٹھکانوں اور سہولت کاری کے مراکز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ افغان طالبان رجیم کو پاکستان یا دہشت گردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ISPR کی صحافیوں کو بریفنگ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں پر متحدہ عرب امارات کے معروف بزنس مین خلف الحبتور کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط۔ خلیج اور مشرق وسطی کو ایران کے ساتھ تنازع میں گھسیٹنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا؟ خطے میں ہونے والے نقصانات کا ذمہ دار کون ہوگا؟ خلف الحبتور کا سوال۔ مشرق وسطی میں جنگ کا دائرہ وسط ایشیا تک پہنچنے کا خدشہ۔ آذربائیجان کے سرحدی شہر نیچخوان کے ایئرپورٹ پر میزائل اور ڈرونز کے حملے میں 2 افراد زخمی۔ باکو کا ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج۔ اور T20 ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل، انگلینڈ کے خلاف بھارت کی بیٹنگ جاری۔ UAE کی فوج نے ابوظہبی میں حملہ ور ڈرون مار گرایا۔ ڈرون کا ملبہ گرنے سے متعدد پاکستانیوں سمیت 6 غیر ملکی زخمی۔ مشرق وسطی میں جنگ کا دائرہ وسط ایشیا تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ آذربائیجان کے سرحدی شہر نیچخوان کے ایئرپورٹ پر میزائل اور ڈرونز کے حملے میں 2 افراد زخمی۔ باکو کا ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج۔ ایران کے ہائپرسونک میزائلز نے تل ابیب میں تباہی مچا دی۔ حیفا میں دفاعی میزائل کا ناکام۔ قطر میں امریکی ٹھکانے دھماکوں سے لرز اٹھے۔ آپریشن وعدہ حق کے 6 روز ایران نے تابڑ توڑ جوابی حملے کیے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس میں ایران سے پاکستانیوں کے انخلاء اور خلیجی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کے حوالے سے اجلاس۔ پاکستان کے انخلاء میں تعاون پر وزیر اعظم کا آذربائیجان سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے ایران پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی۔ خلیجی ممالک پر حملے افسوسناک قرار۔ شہباز شریف کی صدر پرابوو سوبیانتو کو افغانستان سے متعلق حالیہ پیش رفت پر بریفنگ۔
सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। ईरान के मिसाइल्स और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। तेहरान कंट्रोल से बाहर हो गया था, मजीद इंतजार नहीं कर सकते। अगर हमला ना करते तो ईरान के पास जल्द एटम बॉम्ब होता। ईरान के हमलों से पहले इस पर हमला कर दिया। अमरीकी सदर का वाशिंगटन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब। पेंटागन ने कुवैत हमले में हलाक मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारेजानी ने अब तक 500 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने सिफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज की कोशिश की, लेकिन अमरीका और इसराइल ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ईरान का एक और जंगी बहरी जहाज श्रीलंका के करीब पहुंच गया। अमरीकी सबमरीन ने गुज़श्ता इसी मकाम पर भारत से आने वाले एक ईरानी फ्रिगेट को बैनुल-अक़वामी पानियों में तबाह कर दिया था। बहरीन का 75 मिसाइल और 123 ड्रोन तबाह करने का दावा। बहरीनी फोर्सेस के मुताबिक कार्रवाइयां कौमी दिफा के तनाजुर में की गईं। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। अवाम अफवाहों पर ध्यान न दे, ओगरा की अपील। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रुकने के बाद वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़। वज़ारत ख़जाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हफ्तावार ऐलान पर गौर। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। ओगरा का ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अपोजिशन से नैब तरमीमी बिल को सियासी रंग न देने की अपील। पेशकश की कि अपोजिशन की कोई एतराज़ है तो वो भी निजी बिल ला सकती है। बावर कराया कि अदालतें आज़ाद हैं, कोई अदालत किसी के कंट्रोल में नहीं। जज्बात काबू में और आइन को सामने रख कर बात की जानी चाहिए। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर 205 कोर कंदहार तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक पाक फौज ने अफगान तालिबान के एमुनेशन डिपोस को टारगेट किया। और T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज मेजबान भारत और इंग्लैंड के दरमियान होगा। फातेह टीम फाइनल में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल मैदान में उतरेगी। यूएई की फौज ने अबू धाबी में हमलावर ड्रोन मार गिराया। ड्रोन का मलबा गिरने से मुतादिद पाकिस्तानियों समेत 6 गैर मुल्की जख्मी। मशरिक़ वस्ता में जंग का दायरा वस्त एशिया तक पहुंचने का खदशा है। अजरबैजान के सरहदी शहर निचखान के एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन्स के हमले में 2 अफराद जख्मी। बाकू का ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाज। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने तल अबीब में तबाही मचा दी। हैफा में दिफाई मिसाइल का नाकाम। कतर में अमरीकी ठिकाने धमाकों से लरस उठे। ऑपरेशन वादा हक के 6ठे रोज ईरान ने ताबड़तोड़ जवाबी हमले किए। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला और खलीजी ममालिक में मुक़ीम पाकिस्तानियों के हवाले से इजलास। पाकिस्तान के इनखला में ताउन पर वज़ीर आज़म का अज़रबैजान से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सोबियांतो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने ईरान पर इसराइल के हमलों की मसम्मत की। खलीजी ममालिक पर हमले अफसोसनाक करार। शहबाज शरीफ के सदर प्राबोवो सोबियांतो को अफगानिस्तान से मुतालिक हालिया पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। ईरान के मिसाइल्स और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। तेहरान कंट्रोल से बाहर हो गया था, मजीद इंतजार नहीं कर सकते। अगर हमला ना करते तो ईरान के पास जल्द एटम बॉम्ब होता। ईरान के हमलों से पहले इस पर हमला कर दिया। अमरीकी सदर का वाशिंगटन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब।
पेंटागन ने कुवैत हमले में हलाक मजीद 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारेजानी ने अब तक 500 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने सिफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज की कोशिश की, लेकिन अमरीका और इसराइल ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ईरान का एक और जंगी बहरी जहाज श्रीलंका के करीब पहुंच गया। अमरीकी सबमरीन ने गुज़श्ता इसी मकाम पर भारत से आने वाले एक ईरानी फ्रिगेट को बैनुल-अक़वामी पानियों में तबाह कर दिया था। बहरीन का 75 मिसाइल और 123 ड्रोन तबाह करने का दावा। बहरीनी फोर्सेस के मुताबिक कार्रवाइयां कौमी दिफा के तनाजुर में की गईं। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। अवाम अफवाहों पर ध्यान न दे, ओगरा की अपील। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रुकने के बाद वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़। वज़ारत ख़जाना का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हफ्तावार ऐलान पर गौर। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। ओगरा का ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अपोजिशन से नैब तरमीमी बिल को सियासी रंग न देने की अपील। पेशकश की कि अपोजिशन की कोई एतराज़ है तो वो भी निजी बिल ला सकती है। बावर कराया कि अदालतें आज़ाद हैं, कोई अदालत किसी के कंट्रोल में नहीं। जज्बात काबू में और आइन को सामने रख कर बात की जानी चाहिए। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर 205 कोर कंदहार तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक पाक फौज ने अफगान तालिबान के एमुनेशन डिपोस को टारगेट किया।